Welcome to Media Mentor. This is another episode of College Insights and the edition is FTNMP. FTNMP को लेके आपके पास बहुत ज्यादा questions है. Like you know BMM और BMS, BBI ये थोड़े traditional courses हो चुके हैं. But when it comes to FTNMP, there's a lot of anxiety in students कि अगर BMM नहीं लिया और FTNMP ले लिया, क्या हमारे job और career option कम हो जाएंगे? And even if I take that course, क्या कौन सा college लेना चाहिए? Like you know KC is definitely good. UPG थोड़ा सा लोग hesitant थे जितने भी लोगों से मैंने बात किया. Then DGMC है, ठाकुर है. These are the few colleges which are providing this course, which is affiliated with Mumbai University. So today on this episode, I have three guests. Anirudh from KC College. There is Ashutosh from UPG College. दोनों ही FTNMP कर रहे हैं. They are in their first year, and I have Samarth from DGMC College. He is doing his MA in FTNMP. So we're going to discuss how the college is, how the faculty is, and also about this course, that are they happy and satisfied not choosing BMM and choosing FTNMP. So guys, welcome on the show. Firstly, I would start with Anirudh. Anirudh, KC College का FTNMP के बारे में let us know that how they are treating this course. Are you happy with the course? Yes, I'm certainly happy because the thing is कि जैसा वो course है, मतलब practical and all, they're treating us very practically, not just theoretically कि हाँ भाई ये angle यहाँ से. No, they show it. So in various what do you say slideshows and presentations, so it's all good. Okay, so you're enjoying even if it is online. Imagine offline हो गया तो यार तुम्हारे तो मजे. Okay, what about Ashutosh? You are from Mumbai and you are in UPG. I think तूने थोड़ी सी practical भी कर ली है college में. How is UPG treating FTNMP? It was very good. Like हम practical sessions भी कर रहे हैं, theory sessions भी कर रहे हैं. Actually अभी तो like फिर से lockdown लग गया, तो पूरा online mode पे फिर से चला गया. Yes. But November and December practicals पूरे हुए. मोस्टली लाइक ऑफलाइन ही लेक्चर्स थे, तो बहुत मजा आया. एंड बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स भी हुए, तो उसमें भी बहुत मजा आया. लाइक बहुत नए लोग आए और उनसे सीखने को मिला. एंड कॉलेज इज इंट्रोड्यूसिंग मैनी, लाइक एक इनक्यूबेटर प्रोग्राम है जिसमें लाइक दे सिलेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स और फिर वो एक फिल्म प्रोजेक्ट बनाते हैं. एंड देन लाइक उसका जो भी खर्चा रहता है वो कॉलेज पे करती है, अराउंड वैसा रहता है. एंड टेडेक्स टॉक्स, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड आई फील लाइक रियली एक्साइटिंग, लाइक कि इतना कॉलेज मतलब इनिशिएटिव ले रहा है खुद से. एंड ऑल्सो देयर इज वन थिंग कि कॉलेज फीडबैक भी लेता है लाइक हर मंथ में कि हाँ हम क्या इंट्रोड्यूस करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. सो इट्स गोइंग वेरी गुड. Yeah, so I think whatever I heard about UPG और मैंने तुम्हें रिव्यू बताया था वो सही था, है ना? कि UPG is a really good option for students who want to do an FTNMP. वहाँ पे आप कर सकते हो. KC also. Now coming to Samarth. Samarth ने BCom किया है अपना graduation. Now he is doing MA FTNMP. So Samarth, how is DGMC college? Because fees wise तो आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो. तो is it worth it कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा question है उस चीज को लेके? नहीं मैम, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, मतलब ऐसा अभी कुछ भी नहीं है. मतलब आई एम हैप्पी विद द कॉलेज. और बात रही कोर्सेज की, तो मतलब अभी तक वी हैवंट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिकल कोर्सेज. वी हैव ओनली डन विद 2 or 3 लेक्चर्स विद द प्रैक्टिकल लेक्चर्स. और बाकी अभी तक पूरा थ्योरेटिकल है. मतलब आई वांट टू बी अ सिनेमेटोग्राफर, तो उस फील्ड के हिसाब से आई हैव टू गो विद द प्रैक्टिकल कोर्स. मतलब मैक्सिमम पार्ट मेरा उसी चीज का होना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ है. तो मैं उस चीज को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ. बट होप कर रहा हूँ कि फ्यूचर में कुछ प्रैक्टिकल कोर्स हो और वो बेटर रहेगा मेरे लिए. Okay, so it is 2 years program, right? For you, you have complete 2 years, and for Anirudh and Ashutosh, ये 3 साल का आपका program है. So coming to KC back again, Anirudh, have you so far got any project, any live project, you know, to work on, like hands-on कुछ अभी आपको मिला है? Are they introducing that as well? I mean एक Photoshop का प्रोजेक्ट मिला था, and then bottle painting as history of arts. तो मतलब कैसे it is practical but not that practical. Okay. So अभी क्या फिलहाल तो मतलब ऑनलाइन की वजह से. Yeah. And coming to guys, now I'll open it to all of you guys. You can answer. What about like when it comes to treating this subject? Like 3 साल आप जब ये कोर्स कर रहे हो, तो आपको 6 महीने में ऐसा लग रहा है क्या कि आप कुछ कर पाओगे फिल्म इंडस्ट्री में? Yes, I really after you finish this course. हाँ मैम, लाइक बिकॉज कैसा है ना मैम, इन कॉलेज हम क्यों जाते हैं, लाइक कनेक्शंस बने, कॉन्टेक्ट्स बने और एक अच्छे टीचर से सीखने मिले. एंड आई रियली फील लाइक कि इधर वो हो रहा है, लाइक गेस्ट लेक्चर्स आ रहे हैं
एंड लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, प्लस लाइक सीनियर से जो बातें होती है, लाइक देयर आर मेनी, ये जो कल्चरल कम्युनिटीज रहती है ना मैम, लाइक क्लब्स, लाइक माउंट, बहुत सारे क्लब्स है कॉलेज में जो हेल्प आउट करते हैं फर्स्ट ईयर को कि आप लाइक घुल मिल जाओ. Yes. तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है वो तो. Yeah, so that gives you confidence and exposure कि कल को आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ in front of the industry, which a college can only do. Samarth, is the same thing happening in your college only? Because Yes, MA program थोड़ा सा अलग होगा. हाँ मैम, थोड़ा अलग है, बट एक्चुअली there is a placement cell, that is TAP and placement cell. So they are providing us various opportunities. That recently we had, we got an opportunity for a creative director in DID. Okay, nice. So हाँ, मतलब लगता है कि मतलब स्कोप है आगे. आप मतलब टीचर के साथ एक बॉन्ड बना के रखते हो तो दे गिव यू वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस. लेकिन अगर आप थोड़ा दूर रहोगे सर से, मतलब थोड़ा कटे रहोगे ना, तो वैसा नहीं है फिर वो. So ये इंटरनल टिप है, आई थिंक मैंने आशुतोष को बोला था कि एक ही जरिया है अगर आप चाहते हो कि इंटर्नशिप मिले, लाइक यू नो इन FTNMP स्पेशली प्रैक्टिकल कोर्स है, तो अपने आपको अपने फैकल्टी के साथ वो रिलेशन बॉन्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु विल रेकमेंड यू टू द टू द फील्ड आउटसाइड. अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं उसके बाद तो आप अपनी कॉन्टैक्ट बनाओगे, बट जो इनिशियल रिकमेंडेशन है वो बहुत जरूरी है. So in that case, we know that all these 3 colleges are good, and I think all 3 of you have to say the same thing कि faculty आपकी अच्छी है, कोई complaints नहीं है कि कोई complaint है कि faculty बहुत ही खराब है, कुछ सिखा नहीं. Okay, so all 3 colleges are good to go. What about the management when it comes to KC का management, UPG and DGMC? Any complaints from the management? यार वो तो होता ही है ऊपर नीचे. So is there anything that management is not dealing right? Management is not good. DGMC थोड़ा सा सुबह 8 बजे से क्लासेस रहती है, और मतलब एक दिन पहले पता चल रहा था, पता चल जाता है हमको कि भाई आज 8 बजे से क्लासेस है. ठीक है, हम रेडी हो जाते हैं पूरे, और फिर हमको 7:45 पे पता चलता है कि क्लासेस पोस्टपोन हो गई है. मतलब दे आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पनवेल, दे आर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम विरार, उनको कॉलेज आकर पता चल रही है क्लासेस नहीं है. तो इस चीज को लेके मुझे लगता है कि मैनेजमेंट बहुत 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 बेकार है. आई थिंक इफ DGMC is listening it, last time भी जब मैंने रिव्यू बनाया था for BMM, same complaint कि मैनेजमेंट खराब है. Guys, you have such a good amazing campus, you have a good faculties. I think थोड़ा सा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो the college have a long way to go. आशुतोष, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है ना? अपना UPG का मैनेजमेंट फुल सॉर्ट, नो? फुल सॉर्ट. अनिरुद्ध, आई थिंक HSMC तो वो लोग अपने फुल सही से चलते हैं. नाउ क्वेश्चन कम्स इन, एज अ स्टूडेंट जो आप लोगों की एंजाइटी थी टू कम इन FTNMP, Are you happy with the decision of FTNMP की ऐसा लग रहा है कि BMM करते तो थोड़ा ऑप्शन होता? ऐसा कुछ है किसी का? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. Yes, because as guys, I again will re-emphasize on BMM is about communication. BMM is about understanding the media field. उसमें journalism और advertising है. फिल्म सिर्फ एक सब्जेक्ट है. तो अगर आपको प्रोडक्शन में जाना है, आपको डायरेक्शन में जाना है, फिल्म डायरेक्ट करनी है, तो BMM में हार्डली कुछ है उसके लिए. अगर आप वो करना चाहते हो, प्लीज गो टू FTNMP. आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट थिंग. नाउ समर्थ, ये आपके लिए मेजर क्वेश्चन है कि आफ्टर BCom इज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फिल्म इंडस्ट्री कि नहीं यार, मतलब समझ रहा है सब कुछ? अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो आपको हर चीज समझ में आ रही है. जैसे मैं एक्चुअली मैम 2 साल मैंने भोपाल में सिनेमाटोग्राफी करी है. मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पूरा यही है, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन. तो जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, जब से मतलब पहले मुझे मैम जो आपने पूछा है ना, मतलब मुझे भी बहुत डर था कि यार लोगों ने BA FTNMP किया और मैं MA में जा रहा हूँ, मुझे 0 नॉलेज है. आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड अबाउट इट. लेकिन जब मैं फील्ड में आया तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम इवन बेटर देन देम. क्योंकि जब वी डू द असाइनमेंट्स ना कि 10 शॉट 20 शॉट एड फिल्म करनी है, तो कैसा है ना कि मैम जब लोगों के मैंने शॉर्ट फिल्म देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इनसे बेटर हूँ. तो इट्स नॉट टफ लाइक दैट. अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो यू कैन डू इट. यस. सो गाइस, एज ऑलवेज एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैंने BCom किया है, मैंने BA किया है, क्या मैं मीडिया कर पाऊंगा? लाइक स्पेशली जर्नलिज्म एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग. गाइस, कर पाओगे, टेंशन मत लो. फील्ड स्विच करना चाहते हो, सी समर्थ इज अ मेजर एग्जांपल. आप कर सकते हो. फ्यूचर में भी कमेंट में लिख के बता देना अगर समर्थ से अलग से बात करनी है तो हम लोग लाइव कर लेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे. सो वी कैन ऑलवेज डू दैट. ऑल्सो वन थिंग इज, एक और चीज, तुम लोगों ने फिल्म कोर्सेज देखे थे ऑनलाइन एडमिशन लेने के पहले? बाकी जो क्या वो रमेश सिप्पी, विस्लिंग जो 25 लाख लेता है, 33 लाख लेता है, तुम लोगों को लग रहा था वो वर्थ है?
मतलब अभी FTNM, मतलब डू यू थिंक जो आप फीस भर रहे हो, विच इज आई थिंक केसी की 60,000, यूपीजी में कितना है अभिषेक? 62 मैम, 62,000 विच इज एनुअल फीस। तो समझ लो 1.5 लाख में आपका कोर्स, 1.5 लाख समझ लो 2 लाख में आपका कोर्स हो रहा है। समथ हाउ मच आर यू पेइंग फॉर योर MA इन DGMC? 1,21,000 for the 2 years. For 2 years 1,25,000। एंड गाइस इमेजिन सेम चीज के लिए व्हिस्लिंग वुड्स लगभग 25 लाख रुपए लेता है, 25 lakhs। तो आप लोगों को क्या बोलना है स्टूडेंट्स को, इज दैट वर्थ इट? मतलब व्हिस्लिंग वुड्स में पैसे डालने चाहिए बच्चों को? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं मैम। इफ यू हैव मनी और आपको लाइक पहले से कुछ रेड कैमरा ये सब, वो लोग इसलिए देते हैं ना कि वो लोग बस कैमराज आपसे और लाइक बिग क्रेन से सब चीजें ना मैम, सेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। वो तो आप लाइक मेरे ख्याल से सेट्स पे भी जाके सीख सकते हो, वैसा है। बट इफ यू आर रियली इनटू कि आपको चाहिए और आपके पास है पैसे, तो आप बढ़ा सकते हो। आपके पास है 25 लाख, मतलब 25 लाख बोलने के यार साल का, मतलब आपके बापूश्री का अच्छा बैंक अकाउंट है तो कर लो। अभिषेक सही बोल रहा है। बट गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि हर व्हिस्लिंग वुड्स वाला एक बड़ा डायरेक्टर बना है। आप लोगों ने कहीं पे देखा है कि व्हिस्लिंग वुड्स से आया हुआ कोई बड़ा डायरेक्टर? भाई अनुराग कश्यप आया कहाँ से? बिहार से, जो कि उसके कॉलेज का आता पता नहीं है अपने को, राइट? आई एम सेइंग इट विल मैटर। मतलब जैसे आपको अभी गाइडेंस मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मिल रहा है, इट विल मैटर। बट यू नो 25 लाख यार बहुत होता है। एक छोटा, मतलब एक बंदा जिसके बड़े सपने हैं कि यार मैं डायरेक्शन में चला जाऊं, अगर उससे हम बात करें तो वो बोलेगा 25 लाख, उसके माँ बाप बोलेंगे हो गया खत्म, कितनी लोन लेंगे हम? सो यस गाइस, इट्स योर कॉल। आई वुड सजेस्ट कि इतने ज्यादा पैसे डालने से अच्छा आप ग्रेजुएशन करो, विच इज एन मुंबई यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड डिग्री। ये क्वेश्चन आशुतोष को भी बहुत बड़ा था कि मैम करना है नहीं करना है, इसको कोई जानता नहीं है कोर्स को। बट फॉर ऑल द फिल्म मेकर्स आई विल से हैंड्स डाउन, मैंने पूरा सिलेबस देखा है, आप कर सकते हो। एनीथिंग एल्स दैट अनिरुद्ध यू वुड लाइक टू शेयर एज अ FTNMP स्टूडेंट? बिकॉज ये थोड़ा सा अननोन कोर्स है और लोग इसके बारे में इतने अवेयर नहीं है। तो तू कुछ ऐसी चीज बताना चाहता है कि स्टूडेंट को एक अवेयरनेस आए कि भाई आप इतने पैसे देके प्रॉपर प्रोडक्शन फील्ड में जा सकते हो। तो एनी टिप दैट यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स? टिप नहीं, बट द थिंग इज कि यहाँ मतलब पोर्शन जो है ना वो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में कि फर्स्ट दे स्टार्ट विद थियरी कि ओके व्हाट इज कैमरा एंड ऑल, फिर धीरे धीरे वो एंगल्स पे आएंगे, प्रैक्टिकल्स, एंड इन द एंड ऑफ मतलब थर्ड ईयर तुम लोग को पूरा फिल्म बनानी है। सो दैट्स लाइक अ स्ट्रक्चर्ड वे टू गो। और ज्यादा लिखना नहीं है ना, जैसे BMM में लिखते रहो पेपर्स, वो तुम लोग को पसंद नहीं है। तुमको भाई करना है डायरेक्शन, आप वो कर रहे हो, राइट? प्रैक्टिकल स्टफ और प्रैक्टिकल स्टफ एंड दैट टू रेलेवेंट। मतलब आप साउंड, आप लाइट्स, आप सारी चीजें सीख रहे हो। जो कि मैंने बोला ना, सेट पे साला आप कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आपको सेट पे छोड़ दे, सिर्फ सिनेमाटोग्राफी नहीं, आप साउंड और लाइट्स भी देख सकते हो। एंड ग्रेजुअली असिस्टेंट डायरेक्टर ये सारी पोस्ट मिलती है। मतलब इट्स ऑलवेज, हर कोई अपना एक रूट बना सकता है, राइट? आशुतोष, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मतलब जैसे आप कंफ्यूज थे, कोई स्टूडेंट आपको अभी देख रहा होगा जिसने अभी 12th खत्म किया है, तो आप क्या बोलना चाहोगे उस टाइम पे? उसको तो ये रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर FTNMP। कोई मतलब डाउट्स मत रखो, जस्ट चले जाओ। एंड द कोर्स इज वेरी इजी मैम। लाइक ये कोर्स ना ऐसा होता था पहले कि थियरीज बहुत ज्यादा होते थे, बट इतनी ज्यादा थियरी आपको फर्स्ट ईयर में थियरीज मिलेगी, और थियरीज भी इतनी इजी है ना मैम। हाँ, वो तो जरूरी है थोड़ा, और थियरीज भी बहुत इजी है, लाइक उतना हार्ड नहीं है। इसके लाइक एग्जाम्स एंड ऑल द थिंग्स जो प्रैक्टिकल्स है ना, और लाइक सेकंड ईयर से तो मैंने सीनियर से बात की कि आपको सिर्फ मूवीज ही बनानी है, तो मोस्टली पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड ही है कि आपको थोड़ा भी ऐसा नहीं कि वो लाइक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हो उतना अच्छा। मैम मूवीज दिखाते हैं लेक्चर में, क्या चाहिए अभी बोलो? Yeah, that's true, that's true. I mean, you know, understanding cinema एक पेपर हुआ करता था BMM में, अभी निकाल दिया है। मतलब I swear they have changed everything. Samarth, anything that you would like to say when you come from a BCom background? So if somebody is watching you जिसको MA में अपना switch करना है career, so what you would recommend at that point of time? They can do it. They can do it. मतलब this is not such a difficult thing. This is a easy course as well. मैं तो यही बोलूंगा। और मैम मतलब that's it मतलब। ओके, एक क्वेश्चन मेरे को ना बहुत बच्चे पूछते हैं, जैसे BMM में आने के पहले मैम कैमरा खरीदना चाहिए क्या? तो FTNMP आने के पहले लोग ऐसे पूछते हैं कि कैमरा और सिस्टम खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट दैट इज गुड फॉर अ प्रैक्टिस। मतलब अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करें, आपकी कॉलेज प्रोवाइड करेगा ना। समझ किसी बच्चे के पास नहीं है, तो कॉलेज में आप बैठ के 2-2 घंटे एडिट कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि आप में तीनों में से कॉलेजेस में सारी फैसिलिटीज है। सो गाइस ऑल्सो रिमेंबर कि आप जो भी कॉलेज में जा रहे हो उनके पास ये फैसिलिटीज हो कि बेसिक एडिटिंग, शूटिंग रूम वगैरह है, देयर इज लाइक कैमरास एंड एवरीथिंग। ऑल्सो वन मोर थिंग, लाइक यू गाइस आर टीनेजर्स, ऐसा सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, बट हाउ इज द गर्ल बॉय रेशियो इन योर क्लास? लड़कियां बहुत कम है?
नहीं है मैम, I'm only- अच्छी खासी है. It's like Okay. 50, 60, 50, 40 ऐसा है. अच्छा, मतलब मेजोरिटी वाइज लाइक ऐसा कुछ नहीं है, यूपीजी में बैलेंस क्राउड है. Anirudh, what about a your crowd class? of 38 Same, students almost and equal. where एक we तो only कम have ज्यादा. 4 girls in the class. 38 में से 4 गर्ल्स इन द 4 क्लास. girls हैं. नहीं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन भी है ना कि लड़कियों को सिर्फ कैमरे के सामने पसंद है, उनको ना वो बैक एंड वाली कैमरा जॉब नहीं करनी. नहीं, So they yes, don't want to ma'am. get into ये direction. मैम थोड़ा इंजीनियरिंग जैसा साउंड हो रहा है. इंजीनियरिंग लिटरली मतलब ऐसा, Exactly. मतलब यू नो व्हेन इट कम्स टू फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन एंड ऑल, देयर विल बी ऑलवेज अ मेजॉरिटी ऑफ द गाइस की टेक्निकल लड़के कर लेंगे, लड़कियों को क्या मतलब कम्युनिकेशन वाला काम. वैसे ऐसा नहीं है, जहां तक मुझे पता है क्लास थोड़ी सी बैलेंस है. आई थिंक समर्थ ने ये कहा बिकॉज समर्थ इज डूइंग एमए प्रोग्राम, तो वहां तक आने तक अगेन द इंटरेस्ट लेवल चेंजेस. अनिरुद्ध, योर क्लास इज ऑल्सो बैलेंस, राइट? Same. Yeah, so which is a good thing, like, you know, the production thing is happening well. I think we covered about the faculty fees भी आप लोगों को guys लगभग पता चल गई है. This is what we wanted to give you an idea, and I'm really thankful that, you know, Ashutosh, Anirudh and Samarth joined in to share their experience. Anything else that you guys want to share? Because questions तो इतने ही है, because I think आई थिंक Can I add one? सिलेबस तीनों कॉलेज का सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हो. बट हाँ, वी हैव लाइक यू नो द प्लेटफॉर्म इज ओपन, सो एनीथिंग दैट यू गाइस want to share. Yes, ma'am. I want to say one thing. कि if you are planning to go मतलब if you are planning to switch to MAFT or BAFT, it's all up to you. But just make sure one thing कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो ना, आप सबसे पहले उसका स्टूडियो देखो, आप उनका प्लेसमेंट पता करो कि मतलब दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग और नॉट. क्योंकि मैं भी गया था, मतलब मैंने सबसे पहले भोपाल से कॉल पे पता किया कि भाई कैसा है कॉलेज, कैसा है, तो उन्होंने बोला कि हमारा सारे इक्विपमेंट्स है. बट जब मैंने पर्सनली विजिट किया, किसी के पास तो स्टूडियो ही नहीं था. मतलब दे वर जस्ट लाइंग कि हमारे पास ऐसा है, हम रेंट पे मंगवा लेंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले स्टूडियो देखो, प्लेसमेंट पता करो, देन गो टू द कॉलेज. Yeah, it's a very good point what Samarth said. Like मैंने आपको पहले बोल दिया कि फैसिलिटीज चेक करो. BAFT NMP के लिए फैकल्टी, फैसिलिटीज और प्लेसमेंट, ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग मच मोर मनी इन इट लाइक कंपेयर टू अ नॉर्मल ग्रेजुएशन. तो समर्थ ने जो बोला प्लीज आप ध्यान में रखो, स्पेशली इज फ्रॉम भोपाल. जब वो मुंबई आके इतनी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उससे डबल तो वो रहने और खाने में खर्चा करने वाला है, मतलब उसकी फीस से ज्यादा. आशुतोष इज फ्रॉम नवी मुंबई. अनिरुद्ध, सॉरी आई डिडंट आस्क यू, वेयर आर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम मुंबई. I'm from Ulhasnagar. मैम नवी मुंबई से नहीं, पालघर. पालघर, अच्छा हाँ, आशुतोष फ्रॉम पालघर. तो वहां से ट्रैवल तो हो जाता है ना, लाइक डायरेक्ट ट्रेन यू कम टू यूपीजी. So Anirudh is also from Mumbai, but you know there are a lot of students जो कि समर्थ की तरह है BFT NMP में भी, those who are traveling to Mumbai just to study this course. तो अगर आप देखो तो साल का खर्चा ही 1.5-2 लाख हो जाता है minimum basic. So I think you have to take care of the studios, because studios, cameras, all the facilities that should be taken care of. Right, guys? And I think all the details you know. Any question regarding BFT NMP, please comment box में लिख दो. और भी वीडियोस है BMM versus BFT NMP, ये मैंने पिछले साल ही बना दिया था, so ये भी आप चेक कर सकते हो. But any specific question you can write, we'll make the video and I'll get back to you. So guys, ending comment if you want to say for Media Mentor, any feedback. जिन लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, आशुतोष मेरी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक है, आप जानते ही हो. लाइक आई वाज सो कंफ्यूज. मैं बताना चाहूंगा, शॉर्ट में बताता हूँ मैं. लाइक आई हैव बीन टू मैक एंड लाइक मेरे को प्रोडक्शन में जाना था, नॉट इनटू एडिटिंग फील्ड एंड ऑल द थिंग्स. सो मैंने मैक किया, फिर उधर से छोड़ा. देन आई वांट टू परस्यू अ डिग्री, कि डिग्री तो करना जरूरी है, ग्रेजुएशन. सो उसमें जाना चालू किया. फिर कंफ्यूज कि भाई BMM क्यों करना है, बिकॉज उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ मैम. तो आई जस्ट वांट टू परस्यू फिल्म मेकिंग, बट 25 lakhs जैसे मैम ने बताया कौन ही भरेगा, मतलब किसी बस इतना पे आउट नहीं है. सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द कोर्सेज. तब मीडिया मेंटर मुझे कहीं से मिल गया. देन आई जस्ट मैम का काउंसलिंग सेशन लिया. देन आई गॉट क्लियर कि हाँ FTNMP करके कोर्स है. फिर उसको रिसर्च किया, तब मिला कि हाँ ओके ये पूरा फिल्म मेकिंग बेस्ड है एंड आई कैन परस्यू इट फाइनली, एंड इट वाज अ गुड डिसीजन. Thank you, Abhishek. Ashutosh, I remember talking to your dad also. Like his dad was also worried कि मेरा बेटा सही तो कर रहा है ना, 2 बार गलत डिसीजन ले चुका है. मतलब he was, and I'm happy that after 6 months I'm listening to this, कि like he is happy and you know satisfied with what he is doing in his life. And I think I can sorry मैम, मैं आपको ये बोल इट्स लाइक ना मैम, मैं 12th के बाद ही पापा को कन्विंस कर लिया था कि मैं फिल्म मेकिंग में ही परस्यू करना चाहता हूँ करियर. बट मैं जब कर रहा था ना मैम परस्यू करियर लाइक डिफरेंट बैचेस से, बट आई वाज नॉट श्योर कि हाँ मैं अपना पैशन तो फॉलो कर रहा हूँ, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है करियर की, फ्यूचर कुछ होने वाला है कि नहीं. इट वाज लाइक पूरा भाई होगा कि नहीं कुछ. बट नाउ आई एम रियलाइजिंग लाइक हाँ
आई कैन बी अ गुड डायरेक्टर, आई कैन बी अ गुड सिनेमेटोग्राफर नाउ. मैं खुद की इंडस्ट्री चालू कर सकता हूँ. लाइक इतनी कॉन्फिडेंस आ गया अभी ऐसा. अभी like in future, like after 3-4 years, we'll have Samarth, directing some web series or a big movie. आशुतोष प्रसाद डायरेक्टर, अनिरुद्ध कर लोगे यार. सी अभी इसमें ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है बाय द वे, बिकॉज वेब सीरीज इतनी निकल रही है यार, इतना प्लेटफॉर्म हो गया है कि कंटेंट की बहुत जरूरत है. एंड आजकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन बना रहा है. किसी को कुछ अच्छा लग गया ना, आप देखोगे. आजकल ये भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि रणवीर सिंह ही चाहिए, सलमान खान ही चाहिए. कितने ये निकल गए यार, क्या बोलते हैं, वेब सीरीज एक्टर्स. आप देखो, उनको कोई कल तक नहीं जानता था, बट जस्ट बिकॉज दे आर गुड एक्टर्स, यू आर enjoying watching them. So I'm saying for actors, for directors, for script writers, production workers, I think this is the best time to venture out in the industry because बहुत ज्यादा डिमांड है तुम लोगों की. So जिसको भी जॉब कंसर्न्स है ना, प्लीज 2 बार मत सोचो, क्योंकि जॉब्स है. आई थिंक तुम लोग तो अभी इंडस्ट्री में हो. यस मैं भी पहले एमबीए करने का प्लान कर रहा था, क्योंकि मतलब पापा का यही मन था कि यार अब बीकॉम किया है तो इस फील्ड में मत जा, एमबीए कर ले, बिकॉज दैट इज द सेफर साइड कि जॉब मिल जाएगी, ऐसा है. बट मैंने इनको एंड में कन्विंस किया कि यार एक बात बताओ, अभी जॉब तो वैसे भी नहीं लग रही है ड्यू टू कोविड, मतलब वहां पे भी श्योरिटी नहीं है. तो इट्स बेटर कि मैं भी अपने मन का करूं और मैं अपना प्रोडक्शन हाउस डालूं या मैं अपना फ्रीलांसिंग सिनेमेटोग्राफी करूं. तो दैट इज मोर गुड ना कि एमबीए करके वही घिसा पिटा काम करो, और इवन मन भी नहीं लगने वाला है. तो करो वही जो मन में आए आपके, और बी हैप्पी. दैट्स द थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट. पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस. एक चीज याद रखना, फिल्म इंडस्ट्री में आपके पैशन के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. बिकॉज काम तो आपको दिन रात करना पड़ेगा, मतलब मेहनत तो बहुत है, बट वो मेहनत में भी एक मजा होता है ना यार. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज द आउटकम. अगर वो आ रहा है तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे. Exactly. भले थोड़े देरी से, थोड़ा इधर उधर, बट आप बोलोगे यार एक ही मूवी बनाऊंगा और वो नहीं चली तो मैं जिंदगी में कुछ करूंगा ही नहीं, तो नहीं होगा. आई डोंट थिंक सो. दैट्स द आउटलुक, राइट अनिरुद्ध? फिर तो ऐसे होगा यार, आपको ट्राई करते रहना है. 10 मूवी के बाद भी आपकी किस्मत चमक सकती है. लाइक इट्स ऑल अबाउट कि आपको करना है मेहनत. आप जो कर रहे हो उसी चीज में लाइक आगे बढ़ना है. एज द पेरेंट्स दे हैव देयर एंजाइटी कि यार क्या कमाएगा खाएगा, ये इंडस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं, सब गलत इंडस्ट्री है, ऐसा वाला परसेप्शन. बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट दैट वे. इट्स ऑल अबाउट कि यार अभी आप शॉर्टकट मारने जाओगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है. हाँ अनिरुद्ध. थिंग इज कि इंडस्ट्री बदल रही है. द मेन फैक्ट कि हम लोग अभी जो साथ में, लाइक आशुतोष हो गया, समर्थ हो गया, वी विल सी ईच अदर्स मूवीज. दैट्स द मेन थिंग. तो ऐसा नहीं है कि आवर डैड्स और वो देखेंगे एंड वो मतलब फिल्म कोलैप्स हो जाएगा. द थिंग इज वी नो व्हाट अपनी जनरेशन को पसंद है. तो इफ वी मेक इट लाइक दैट, तो वो अपने आप ही चलेगा. तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि व्हाट विल यू राइट, इट विल वर्क या नहीं. ऐसा आई टोटली एग्री विद अनिरुद्ध, बिकॉज मैम पहले कैसा था ना, यू टोटली डिपेंड ऑन बॉलीवुड या फिर कोई प्रोडक्शन कंपनी अगर आपको काम करना है. बट अभी वैसा नहीं है. अगर आपके पास नॉलेज है ना, कैमरा रेंटल, तो कैमरा खरीदने की भी जरूरत नहीं मैम. टेक द थिंग्स ऑन रेंटल. हाँ, मोबाइल फोन लो या फिर टेक द थिंग्स ऑन रेंटल. आपका कंसेप्ट अच्छा रहना चाहिए. शूट करो, एडिट करो, यूट्यूब पे डालो, यू गेट द व्यूज. आप अर्न कर सकते हो उधर से इजीली. यू गेट द फ्री सोर्स. वेब सीरीज आ रही है, टू बी ऑनेस्ट. यस टीवीएफ वही कर रहा है अगर हम देखने जाए तो. टीवीएफ कितने सारे प्रोडक्शन कंपनीज आ गए. So guys, we'll start from where we stopped. So Anirudh, जैसे कि आपने बोला कि things are changing now. Like lot of youngsters are coming together and supporting each other. अभी वो nepotism का जमाना नहीं रहा, right? Only करण जौहर और only यशराज वाला जमाना चला गया. So I think अभी जो next 2-3 years में आप लोगों को लगता है कि एक दूसरे को support करेंगे, मतलब the young directors will support each other to grow. You think that is gonna change a lot of things? Yes मैम, आई थिंक सो. ये होने वाला है बिकॉज लाइक सबको सबके आइडियाज आजकल एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा है. बिकॉज ना कंटेंट इतना ज्यादा हो गया है ना कि कॉमन कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है. सो इफ एनीबडी गेट्स लाइक, मेरी टीम में से कोई भी अगर कोई एक डिफरेंट कंसेप्ट लेके आता है ना, सो आई एम लाइक अरे वाह भाई आजा. इट्स लाइक समझ रहे हो ना, लाइक अभी ना इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएटिविटी विल बी इन डिमांड इन द कमिंग फ्यूचर. बिकॉज जैसे रियलिस्टिक सिनेमा आया था, गैंग्स ऑफ वसेपुर से जो वेव चली है, एक होता है ना, सबको रॉ देखना पसंद था. फिर जैसे हम इस पे नेटफ्लिक्स पे गेम चेंजर लाया सेक्रेट गेम ने, बट फिर गालियों के ऊपर भी चीजें आने लगी, लाइक द लेटेस्ट थिंग्स इफ यू सी. सो इफ आई आस्क यू लाइक डू यू थिंक व्हाट इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोडक्शन, जैसे कि जॉब डिमांड इंक्रीज हो जाएंगे, एक्टर्स को बहुत ज्यादा स्कोप हो गया है, डायरेक्टर्स को स्कोप हो गया है. सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, इफ अ पर्सन थिंक्स कि पैसा
still will play a major role in this industry, लगता है? कहीं ना कहीं तो मैम करेगा ही थोड़ा, बट ऑब्वियसली स्किल मैटर करता है। और आजकल मेरे ख्याल से कंटेंट आपका अलग और थोड़ा हटके रहना चाहिए, तभी चलेगा। लाइक ये देख लो ना मैम, स्क्विड गेम, सब पहले कोरियन मूवीज लाइक हाँ अच्छी नहीं है, वैसी नहीं है, एंड देन स्क्विड गेम केम और उसने तो एक ब्लास्ट ही मचा दिया। लाइक कि कम्पीट विद द मनी हाइस्ट जैसे सीरीज के साथ, वो सोचो मैम। सो एक डिफरेंट कंसेप्ट आप अगर लेके आ गए ना मार्केट में, सो आप छा जाओगे वैसा। Yeah, that's true. I mean, Money Heist was crazy. I mean, people were. उसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी थी. I mean, I am not a Money Heist person, but मैंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एपिसोड देखा and I enjoyed it. बीच का मैंने देखा ही. So, I mean, yes, as we are talking about the concept will sell. So, if you think you have a talent, please go ahead and do that. Okay, last question. What do you think about this Instagram movie makers, TikTokers जो आप लोग बोलते हो ना? So, do you think कहीं ना कहीं ये जो short स्पेस है वो चीजें कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी को खराब कर रही है क्या? मतलब डू यू थिंक सो? हमेशा एक फिल्म मेकर इस चीज को डिबेट करता है। तीनों ऐसे है। नहीं मैम, मेरा थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट रहेगा। मैं एग्री भी करता हूँ, नहीं भी। आई थिंक लाइक थोड़ा सा हाँ, ऑब्वियसली ऑडियंस का ये जो वॉच टाइम है बहुत ज्यादा कम कर रही, बट इन केस ये वो भी चीज है कि मैम इन 30 सेकंड और इन 1 मिनट बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो लाइक 30 और 1 मिनट के जो टाइम स्पैन है उसके अंदर एक स्टोरी बना देते हैं मैम, समझ रहे हो ना? तो हमारे इसमें भी होता है लाइक 1 मिनट शॉर्ट फिल्म, 30 सेकंड शॉर्ट फिल्म, तो ये वो कैटेगरी भी आ जाती है। एंड आप लाइक समझ रहे हो ना मैम, 1 मिनट में ऑडियंस को पूरा कनेक्ट कर दे, हाँ क्या चीज चलने वाली है क्या नहीं होनी। इट्स ऑल्सो अ गुड टॉपिक। जैसे मैंने बताया मैम, क्रिएटिविटी और कुछ नया लाइक ट्रेंड के साथ तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे हट जाओगे। You have to adapt with that things. Yeah, that's true. आशुतोष वही हो रहा है ना कि देखो अभी 3 घंटे से मूवियां छोटी हो गई है हर, बट एट द सेम टाइम सारा बिंज वॉचिंग करते हैं 9 घंटे। हम अभी तक सही बात है मैम कि 3 घंटे की मूवी होती है इंडियन मूवी, राइट अनिरुद्ध? लाइक लेकिन वॉच टाइम बहुत कम हुआ है बिकॉज नाउअडेज यूट्यूब वीडियोस भी ये लोग 8 मिनट से ऊपर नहीं देखते। पहले हर्ष बेनीवाल एंड ऑल कैसे 22 मिनट के वीडियोस डालते थे, वो सब देखते थे। बट अभी इट्स लाइक 8-10 मिनट की वीडियो भी किसी ने डाली तो इट्स लाइक बोरिंग। या एग्जैक्टली, पीपल वांट शॉर्ट कंटेंट। बट आई एम सेइंग कि तुमने कॉन्ट्रास्ट देखा है कि हम स्क्विड गेम को बिंज वॉच किया, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल वी नो 9 घंटे की वेब सीरीज तो एक दिन में देख लेते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन दैट 9 आवर्स एंड एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो मेरे को 3 घंटे का स्पैम, मतलब 3 घंटे क्या, जैसे अनिरुद्ध आपने बोला 8 मिनट का वीडियो कोई नहीं देखता। तो ऑडियंस का दिमाग ना बहुत अलग तरीके से चल रहा है। आई मीन आई डोंट नो, इट इज अ चैलेंजिंग थिंग फॉर यू गाइस लाइक वेडिंग डायरेक्टर्स। मतलब ये जो रील्स है ये थिंग है ना, इसने एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है कि आपको ऑडियंस को हर सेकंड बांध के रखना है, आप छोड़ नहीं सकते उनको। आपने अगर बीच में थोड़ी सी भी लाइक 30 सेकंड का भी ढील जाना, छोड़ के चल जाएंगे, ऐसा हो गया। So I think I'm saying this field is challenging. जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना ज्यादा ये होते जा रहा है, चैलेंजिंग होते जा रहा है। मतलब म्यूजिक हो गया, आपके VFX हो गए। सी बाहुबली ने तो एक VFX का सेट कर दिया है भाई। अभी राजा मौली, आई डोंट नो RRR तुम लोग ने देखी कि नहीं, क्या पता क्या सीन, दैट हाउ इज अ मूवी, आई डोंट नो, अभी तक कुछ उसका पता नहीं है ना मैम अभी। एक्सपेक्टेशन है बट आई डोंट नो, ऐसा देख के कुछ उम्मीद नहीं लग रही है उससे। आई मीन ऐसा लग रहा है कि शायद ले मूवी, पता नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट राजा मौली का जो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ उसके बाद से आप सोच रहे हो वो VFX, उतना मनी इन्वेस्टमेंट, इतने करोड़ की मूवी। हाँ, एट द सेम टाइम यू हैव सलमान खान विद द रेस 3 काइंड ऑफ अ मूवी। आई मीन इतने पैसे बर्बाद क्यों करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। वो मूवीज भी फ्लॉप नहीं होती, मतलब ये पूरा इन गेम रहता है ना मैम, लाइक वो ऑडियंस लेवल पे फ्लॉप होती है वो, बट मनी लेवल इस पे हुई थी मैम। ये जो बात है ना, लाइक सूर्यवंशी रेस, ये मूवीज फ्लॉप क्यों नहीं होती? सो देयर इज वन थिंग इनसाइडर, मतलब लिटरली, मतलब जाने दे वो वर्ड होता है ना कि क्रैप, मतलब क्रिंज होता है ना, वो था वो क्रिंज कंटेंट। आई थिंक अवश्य ये ना लाइक क्रिटिक्स जो सारे रहते हैं ना, जो लाइक मूवी के रिव्यूज देते हैं, वो सारे पेड रहते हैं ऑब्वियसली। अब सबको पता है कि हाँ अच्छे तो सब तो देखने जा ही रहे, मूवी खराब हो पर टिकट्स तो सब खरीद रहे। वो रणवीर सिंह, अजय देवगन और वो दोनों ऐसा राउंड खड़े होके वो आर्टिफिशियल गन लेके गोली मार रहे हैं। मतलब पुलिस वालों को इज्जत तो कुछ भी, हम उसका मूवी का जॉनर डिसाइडेड नहीं था कि क्या रखना है। सही मतलब थ्रिलर रखना है, कॉमेडी रखना है, मतलब यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है और
वहां उसमें कॉमेडी आ रही है। मतलब इतने टेंशन में कोई कैसे कॉमेडी इंसर्ट कर सकता है? The only thing I love वो ना मैम, जो वो पुलिस वाली आई वाला जो गाना है ना, रोहित शेट्टी ने डाला, वो बहुत अच्छा था बस। अरे but I mean that's what I'm saying guys, you don't know how the audience will react to things, and the best part is जैसे समर्थ ने बोला कि ये जो मास मूवीज है ना, लाइक सूर्यवंशी, यही चलती है एज इन थिएटर्स में, एंड जब भी थिएटर से बाहर आती है, फॉर एग्जांपल तुम्बाड़, ब्यूटीफुल मास्टरपीस, ये जब भी थिएटर में थी किसी ने नहीं देखी, जब भी आई अभी Amazon पे, तो एवरीवन इज लाइक ओ माय गॉड तुम्बाड़, ओ माय गॉड तुम्बाड़, थिएटर आती है कोई नहीं देखता। But अनिरुद्ध कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ गया है, ये लॉकडाउन से अच्छा हुआ सिनेमास बंद हो गए टू एन एक्सटेंट, पीपल स्टार्टेड वैल्यूइंग अ गुड कंटेंट rather than you know just अरे सलमान खान आया, अरे अजय देवगन आया। अब वो कंसेप्ट निकल चुका है कहीं ना कहीं। 50-60% पीपल आर जस्ट लाइक क्वालिटी कंटेंट देखना है यार, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, और वो भी 1000 रुपए तो बिल्कुल नहीं करना। जैसा मैम आपने बोला कि लाइक ये कॉन्सेप्ट निकल चुका है, अजय देवगन ने सलमान खान, दैट वन कॉन्सेप्ट लाइक द व्हाइट टाइगर मूवी, इसका एक्टर का शायद मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो ऑस्कर के लिए गई मैम, सिंपल एक्टर, प्रियंका चोपड़ा वाली ना? हाँ प्रियंका चोपड़ा वाली, या सो एग्जैक्टली ऑडियंस को बहुत पसंद आई वो मूवी, लाइक कंसेप्ट इतना रॉ और अच्छा था ना मैम। यस ट्रू, नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडियंस चेंज हुआ है, लाइक हमने पूरा टॉपिक स्टार्ट किया कि चीजें बदल चुकी है, एंड पीपल, आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट कि पीपल नाउ हैव बिकम वाइज इनफ टू वॉच अ गुड कंटेंट। और कहीं ना कहीं जैसे आप लोग फ्यूचर डायरेक्टर्स हो, आप लोगों के वर्क की रिस्पेक्ट होगी, एंड दोज आर वाचिंग जो अभी 12th खत्म कर रहे हैं, डिसीजन लेने वाले हैं टू यू नो बिकम अ फ्यूचर डायरेक्टर एंड गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, आई थिंक यू आल्सो शुड फॉलो योर पैशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैलेंजिंग होगा, इजी कुछ नहीं होने वाला है, and things are changing, so you have lot of opportunities. Thank you guys, thank you so much. Thanks for watching guys, and you know you have to stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe, and special thanks to all my guests and my team, which is Pranav, Melvina, Ibrahim and Ganesha, those who coordinated, and you know they are the editors and for my show. So thank you guys, thank you so much, and hope to see you soon. थैंक यू सो मच, सो नाइस, बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत अच्छा।